Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 31 August 2021 and I am teaching you chapter number 7 and name of the chapter is Protecting Plants and Animals. So, let's do little recapitulation, student, what we have done in the previous video. So, student, in the previous video I am explaining you why we should protect our forest. Okay, why should we protect our forest? These things I am explaining you in the previous video. So, forest is a home of the birds, insects and wild animals. Okay, and forest help to clean the environment, because as we know that plants take carbon dioxide and they release oxygen, which is our living gas. Okay, so these points we have already discussed in the previous video. If you want to see it in detail, you can see the previous video. Now I will start from the last point, protection of forest, cutting down trees. If we cut the trees, last point is the cutting down trees. So student, if we continuous cut the tree, so what we are doing, we are destroying the, if we continuous cut the trees, so student, we are destroying the homes of the animals. Okay, we are destroying the homes of the animals also by cutting the trees. And as we know that in previous topic I have already explained you that the plants are the only producers. Okay, we human beings and animals, we are totally depend upon plants for our food. Is it clear? So that is the reason we should plant more and more trees, so that our environment is also clean. Now in present time there is in the newspaper and in the TV channel you listen the news that air pollution. So how these types of things happen? This is due to the human activities. ये जो इतनी पॉल्यूशन हो रही है बेटा, ये किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. Is it clear? So we should not cut the trees. If we are cutting the trees, so we are destroying the forest by cutting the trees. So what we are indirectly, what we are doing, we are destroying the homes of the wild animals. We are destroying the homes of the wild animals. So we should not cut the tree. So and even it is given that we must understand this thing that these forests are very important for us. ये जो फॉरेस्ट है बेटा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ एनी ट्री, अगर ठीक है, इफ एनी ट्री डाई और वी हैव कट द ट्री, वी प्लांट अनदर ट्री. ओके, सो टू encourage the people or to create a awareness among the people, many festivals are also celebrated.
for planting the trees. For example, Van Mahotsav, okay, to encourage the people that they must plant more and more trees. These trees are our lifeline. So for this, to encourage the people, the festivals are also celebrated like a Van Mahotsav is a festival. So Van Mahotsav is a festival. So this is the festival. On this day, in all parts of the country, we plant new trees. ठीक है? And this festival is celebrated at the beginning of the rainy season. When this festival is celebrated at the beginning of the rainy season. So in all part of the country, this festival is celebrated in the beginning of the rainy season. So at this time we plant more and more trees. Is it clear? Now did you know it is given in 1973 a forest conservation movement started in India called it the चिपको movement. Okay, it was initiated. इसे किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा. सो 1973 में फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्वेशन मतलब कैसे उन्हें सेव किया जा सके, तो उसके लिए 1973 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको हमने क्या बोला था? चिपको मूवमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे लोगों ने ट्रीज को कट करने के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट की थी और इसे इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है. लोगों ने क्या किया था बेटा? पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों को ही पकड़ के खड़े हुए रहते हैं कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे. ठीक है. तो दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड इन 1973. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट एज ए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से जब हमने बेटा देखो जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुई ह्यूमन बींग्स की, तो द डिमांड ऑफ द फूड इज आल्सो इंक्रीज. सो डिमांड ऑफ द फूड इज इंक्रीज, इट मीन्स वी नीड मोर लैंड फॉर द कल्टिवेशन. एंड ड्यू टू दिस व्हाट वी हैव डन, वी स्टार्ट कटिंग द फॉरेस्ट. We start cutting the forest because we need more land for the cultivation and also we need land for making the houses also. So due to these activities, what happens student? Many of the animals become extinct. Okay, next topic which I am explaining you is the forest as national parks and wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries. So forest as national park and wildlife sanctuary. So why the government has taken this step? ये step government ने बेटा क्यों उठाया? ठीक है. Why the government has taken this step? Because we are continuous cutting the trees and due to this what's happened? Some of the animal become extinct. Become extinct means ठीक है. तो ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि हमें पता है ये फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल होम्स हैं वाइल्ड एनिमल्स के.
तो हम कंटिन्यूस अगर ट्रीज को फॉरेस्ट को कट करने लगे तो इससे क्या हुआ, मैनी एनिमल सम एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब वो बिल्कुल ही गायब होने लगे। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे बेटा तो ये एनिमल्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। सो सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। एनिमल्स की जो पॉपुलेशन थी बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगी, ठीक है। और कुछ एनिमल तो एकदम वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हो गए कुछ एनिमल्स की, अब कुछ ही रह गए, अगर उनको हमने सेव नहीं किया तो ये एनिमल्स फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। सो द गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ओल्ड टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी एनिमल्स को किल नहीं कर सकते हो, पोचिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब आप एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते, पेड़ों को नहीं काट सकते। आप बेटा कभी भी जाओगे, अगर आप रोडवेज पे जा रहे हो या तो ट्रेन से जाते होगे, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या तो अपने आर्मी स्कूल में भी आप ऑब्जर्व करोगे, अब गवर्नमेंट ने सारे पेड़ों पे नंबर्स लगा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की होगी तो अब आप ऑब्जर्व करना, गवर्नमेंट ने सारे पेड़ों पे नंबर्स लगा दिए हैं। अब एक भी नंबर मिसिंग होता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पेड़ यहाँ पे था और किसी ने इसे कट कर दिया, टू सेव द ट्रीज, क्योंकि ये क्या है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, फॉरेस्ट में जो पेड़ है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो लोग अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटते रहते हैं। तो अब फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट बचाने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए क्या किया है कि फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट और अगल बगल जितने भी पेड़ हैं सब पे नंबरिंग कर दी है। अब कोई भी नंबर मिस होता है तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे कोई पेड़ था और उसे हमने किसी ने उसको काट दिया, ठीक है। तो दैट इज द रीजन एंड पोचिंग इज टोटली नॉट अलाउड इन दीज एरियाज, ठीक है। पोचिंग मतलब शिकार करना, अब शिकार करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। जैसे ओल्ड टाइम में लोग जाते थे शिकार करते थे, जंगलों में जाके जानवरों को मारते थे, अब ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो देन, अगर आप ऐसा करते हो बेटा प्रेजेंट टाइम में तो आपको फाइन भरनी पड़ेगी, फाइन आप नहीं दे को तो आपको जेल भी हो जाएगी, ठीक है, आपको जेल भी हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में दिस इज द लॉ, ये लॉ है, कानून है हमारी कंट्री का। अगर आप पेड़ काटते हो कोई भी ग्रीन पेड़, आप डायरेक्टली नहीं काट सकते, इसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप अपने घर का भी पेड़ काट दिए तो भी आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप फॉरेस्ट में जाके एनिमल्स को किल नहीं कर सकते, अगर आपने किसी एनिमल को किल किया तो आपको इसके लिए बेटा जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी देना पड़ेगा और आपके ऊपर केस भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ और आपको जेल भी हो जाएगी। अब आप किसी भी एनिमल्स को अपने शिकार नहीं कर सकते, मतलब पोचिंग इज टोटली नॉट अलाउड, मतलब अब आप जंगलों में जाके वाइल्ड एनिमल्स को आप किल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ओके। नाउ इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF आप लोग रेसलिंग मत समझ लेना, रेसलिंग जो आती है 10 स्पोर्ट्स पे, तो ये रेसलिंग नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। नाउ सी इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WWF क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या वर्क करती है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इट इज क्लियर।
और इट वाज सेटअप टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज से हमारे प्लैनेट जो अर्थ है इसकी बहुत ही हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से अपने प्लैनेट को बहुत खराब कर दिया है। ठीक है, आप पेपर में आजकल पढ़ते होंगे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है। ठीक है, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ ए थिंग्स अराइजेस ड्यू टू आवर ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, तो अब देखो क्या क्या चीजें इसमें पॉइंट डिस्कस किए हैं। कंजर्व द वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्विंग। ठीक है, हमें क्या बचाना है, द वर्ल्ड्स, कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सो अब देखो बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। सो हमें उन सबको क्या करना है, कंजर्व करना है, बचाने का काम करना है। ठीक है, इंश्योरिंग द यूज ऑफ ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की देखो, रिन्यूएबल अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके स्टॉक जो एबेंडेंट हैं, उनके स्टॉक जल्दी खत्म होने आने नहीं है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, इनके स्टॉक कभी ना कभी कंटिन्यूस यूज करते करते खत्म हो जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी नेचुरली रिसोर्सेज हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है बेटा क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगेंगे। ठीक है, अगर इनके स्टॉक एक बार फिनिश हो जाएंगे तो आप इसको तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते, हजारों साल लग गए इनको बनने में। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल। हमें ये देखना है कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको सही ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं इसीलिए आज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है प्रोमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, जो भी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, रिडक्शन किस में करना है, पॉल्यूशन में। पॉल्यूशन कैसी कैसी हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रही है, लैंड पॉल्यूशन हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रही है। हमें इन सारी चीजों को क्या करना है, लेस करना है। And last point is our earth is the only planet where life is present. As you know that out of 8 planets, earth is the only planet in which life is possible because all the conditions which are required for the life, they all are present on the planet earth. Okay, so student, now today I have completed your chapter, that is chapter number 7. And now we will start with the book exercises of the chapter. First question, take out your book. Book exercises you will complete in the book only. Take out your book. Question number 1. Question number 1. Tick the correct answer. Pick the correct answer. Okay, so question number 1, human beings are dash. Question number A, carnivorous.
Carnivorous. Question number B, herbivorous. Question number C, option C, omnivorous. And option D, decomposers. Okay, so human beings come in which category? Carnivorous? No, carnivorous is a wrong answer because carnivorous are those animals which eat the flesh of other animals. Okay, so that is carnivorous only eat flesh. That is the reason option number A is wrong. Herbivorous, yes, this is also not a right answer because herbivorous are known as a plant eating. Herbivorous come in that category which eat only plants. They never eat flesh, they eat only plants. So this is not a right answer. Decomposer, this is also not a right answer because decomposers come in the category, in this category what comes? Bacteria and fungi, and they feed on dead plants and animals. So this is also not a right answer. Yes, right answer is omnivorous. Omnivorous means those which can eat plants also and they can eat flesh of animals also. So human beings come in the category of omnivorous. So this is the first question. Now see question number 2. Bacteria are a dash. So option number A, consumer, decomposers, C is the primary consumer, and D is the secondary consumer. So bacteria are a consumer. No, this is not a right answer. देखो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं. अब उनको जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं? वो कंज्यूमर्स में आते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर. प्राइमरी कंज्यूमर में बेटा वो आएंगे जो प्लांट्स को खा रहे हैं. ठीक है. वो सेकेंडरी कंज्यूमर में दिस इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर. सेकेंडरी कंज्यूमर में बेटा आपके कौन आएंगे? कार्निवोरस एनिमल्स आएंगे और ओमनिवोरस, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं. जो प्लांट्स भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं तो वो आपके आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो व्हाट इज अ बैक्टीरिया? इज अ डीकंपोजर. बैक्टीरिया इज अ डीकंपोजर बिकॉज दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल. बैक्टीरिया इसमें आएंगे डीकंपोजर में बिकॉज दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. Question number C. Plants depend on animals. Plant depend on animals for dash. First is helium, oxygen, carbon dioxide, and D is the nitrogen. So all these are the name of the gases. ठीक है. ये सारे नेम हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या गैसेस के नाम है. ठीक है.
अब देखो बेटा, प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फार्म, सो विच ऑन विच गैस द प्लांट डिपेंड, अच्छा प्लांट्स है, प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फार्म, सो प्लांट्स किस गैस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कब यूज करते हैं, जब अपना वो फूड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्गेनाइजेशन to protect and create awareness to protect wildlife। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए WWF, ऑप्शन नंबर बी UNO, ऑप्शन नंबर सी WHO, एंड ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। So an organization to protect and create awareness to protect wildlife, that is known as WWF, Worldwide Fund for Nature, that is WWF। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वन महोत्सव is celebrated in the dash, ऑप्शन ए समर सीजन, ऑप्शन बी रेनी सीजन, ऑप्शन सी विंटर सीजन, एंड ऑप्शन डी स्प्रिंग। So student, we celebrate Van Mahotsav to encourage the people to plant more and more trees. Okay, so that is the reason, as we know that when we plant new trees at the, because trees required a water and the soil should be wet, मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जब भी हम खेती करते हैं, तो सबसे पहले फील्ड को हम लोग वाटर से उसका इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं, जिससे कि सॉइल में मॉइस्चर हो, तभी नए पेड़ लगते हैं। इज इट क्लियर? सो वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच सीजन, दैट इज द रेनी सीजन। दिस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेनी
season. It is celebrated in the rainy season. So question A we have completed. Now we will start question number B. Question number B. Okay, we will continue this in the next video. Thank you, student.